Hello, is there anyone? Hello. Yeah, hi. Hi. Am I Yeah, audible? yeah, you Okay. are. Okay. Manus, may I, Hello. yeah, can you hear my voice? Yes, yes, yes. Okay. I said, Manus, your name is Manus, I guess. No, I am Akshay. I'm his partner. Akshay. Okay. He is coming. No, it's okay, it's okay. Yeah. So, Akshay, how was your day? Uh, it's a very busy day actually. Um, Because I I'm did. we are on site right now in Diu. So, by the way, where your side? What? Where is your side location? Location. What is the location? Diu, Gujarat. Dear Gujarat. Okay. I guess Yes. it's nearby Surat. No, no, it's not nearby Surat, but it's in Saurashtra area. Okay. Okay. Yeah. So should we start our call? Like this interview we will feature on our YouTube channel. So I guess you don't have a problem with it? Okay. Yeah. Uh, so should we start? Okay. Yeah, just give me some second. Okay. So Akshay, like I gone through your website link. Okay, I read some about your company, like when your company is established, when you started your company, what kind of project have been you done in the past, in the future. Yes. Okay, so I read some details about your company. Okay, and what inspired you to become an architect, and how you what's so how you go into this career? First of all, I'm not very good at reading and books and all something. I like sketching something every day, something new. I want designing something new every day. I don't want to be 9 to 5 job. So Okay, this is the main reason I come in this field because मुझे वो सब टिपिकल चीजें करना पसंद नहीं है। like कुछ नया चाहिए हर दिन। That's why. ओके सो Yes. इस पे आपको ऐसा मतलब क्या आपको रोज नया नया इट मीन्स क्या क्या देखने को मिलता है जो आपको लगा कि नहीं कि यहाँ पे जाऊंगा तो एटलीस्ट अगर 9 to 5 की जॉब में मैं समझता हूँ कि वो आपका डेली रूटीन हो जाएगा, ऑफिस Yes. जाना, ऑफिस से घर आना, फिर मतलब जो भी आपका डेली रूटीन होता है, बट यहाँ पे आपको ऐसा हाँ, क्या है कि वो बाकी बाकी चीजों से अलग होगा। हर रोज अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं। वो मुझे सोल्यूशन करने में बहुत मजा आता है। कोई कोई बोलता है सर मुझे यहाँ पर ये वार्डरोब ऐसा नहीं कुछ ऐसा चाहिए कुछ अलग बना के दो। तो दिमाग ज्यादा चलता है। अगर कोई बोलता है सिर्फ वार्डरोब बनाना है तो मिस्त्री भी बना सकता है। हम्म। कहने का मतलब कुछ अलग चाहिए तो हमारी जरूरत पड़ती है। दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी चूज दिस फील्ड। या ओके, that's interesting. एंड सेकंड थिंग इज वी आर फ्रॉम गुजरात, राइट? तो इन आवर माइंड वी वांट मल्टीपल बिजनेसेस। अगर हम डिजाइनिंग फील्ड चूज करेंगे तो हमको और कितनी सारी लाइंस हमारे अटैचमेंट में मिलेगी। Yeah, sure. हाँ, दिस इज द Main कोर reason. आइडिया। यस। Okay, that's interesting. Okay. हाँ, And yeah, like you started your journey and your company is I guess been founded in 2011. यस। Yeah. माय पार्टनर मनोज चौटोडिया, दिस इज द ही इज द फाउंडर ऑफ द कृतम डिजाइन स्टूडियो। एंड आई Okay. लेटली joined in 2019, I think 19 या 18। Nearby. यस। Okay. And like okay, that's great. So okay, and how wow. He is Mr. Manoj Chaudodia, who is the founder Hi of Pratham Manoj, Design Studio. how are you? Fine, fine. Yeah, that's great. Okay, so Manoj, let me introduce myself. My name is Ankit. Okay, I'm editorial and chief from Archidesk.com. Okay, and like
Actually, you told me like you will start your company in 2011. Yeah, Yes, yes. yeah. So, what's become inspire you? Because I know about the exact. Actually, told me that. So, what's inspire you to become an architect or going your career in architectural design? What's inspire you? No, listen. Not audible. Can you repeat? Yeah, sure. Uh, Architecture. now it's good. Now it's better. Yes, yes, yes. Okay. I said, Manoj, what's inspired to become an architecture, become a designer? Actually, same. Yeah, We same both question. we Yeah. we both don't like reading and books and all. That's why we choose this field first. He is also my guru. He teach me everything. Okay. This yes. Okay. So like how you are met? How you are met? Like आप कैसे मिले आप दोनों? Uh, 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 हम मेरा मेरा क्या था कि मैं जब स्टार्टिंग किया जब इसके अंकल अंकल है वो उसका मैं इंटीरियर कर रहा था उसके ऑफिस का राइट एंड देन इसका 12th चल रहा था और वो पूछ रहा था कि भाई मैं कहाँ पे जाऊँ क्या करूँ ऐसा करके तो मैंने उसको बोला कि तू आर्किटेक्चर में आ जा और पूरा यानी कि ये लाइन ऐसा है वगैरह वगैरह स्केचिंग वगैरह गुड एंड इसको भी क्या है थोड़ा यानी कि इंटरेस्ट था आर्किटेक्चर वगैरह में तो उस हिसाब से मैंने उसको आर्किटेक्चर में एडमिशन दिलवाया और बाद में पूरा continue किया। और उस हिसाब से मैंने उसको बाद में वो स्टडी फाइनल होने के बाद आगे भी मास्टर्स वगैरह की तैयारी अभी मैं इसको करवा रहा हूँ बिकॉज मेरे से नहीं हो पा रही है क्योंकि बिकॉज फील्ड वर्क काफी मेरा फील्ड वर्क वगैरह ज्यादा रहता है तो ये क्या है थोड़ा मेरे को भी उस हिसाब से बाद में मैंने इसको पार्टनर में ले लिया। yeah, बिकॉज आपका फील्ड वर्क होता है, फिर आपके कस्टमर्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, फिर आपको चेक करना होता है। यस यस तो आई अंडरस्टैंड यस यू हैव आल्सो। ओके। एंड ओके, uh you started your company 2011. Okay, after that आपने कैसे स्टार्ट किया, और लाइक आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि आर्किटेक्चरल डिजाइन में फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करता है, किसी चीज में अगर मैटर करते हैं। यस तो आपका कैसे फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मतलब आपने इसी फील्ड को क्यों चूज किया, और कुछ आप अपने बारे में मेरा बताएं। यस। यस मेरे बारे में मैं बताना चाहूंगा तो मेरा क्या है कि स्टार्टिंग मेरा फैमिली बैकग्राउंड इज लोअर फैमिली मेरा क्या है फैमिली में कोई यानी कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है हम्म। जो मैं हूँ और मेरा क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीडिंग में इतना ध्यान नहीं था और सेकंड थिंकिंग पेंटिंग्स वगैरह मेरे को थोड़ा काफी अच्छे से आता था और इस लाइक सबका घर बनाना वगैरह थोड़ा यानी कि उसमें नॉलेज थोड़ा ज्यादा था वो फील्ड क्रिएटिव। में यस क्रिएटिव। क्रिएटिविटीज में राइट तो क्या है कि भाई मैंने ये फील्ड चूज किया एंड काफी स्ट्रगल करना पड़ा यानी कि काफी क्योंकि बिकॉज फैमिली में से भी कोई किसी को पता नहीं था व्हाट इज आर्किटेक्ट या व्हाट इज इंटीरियर डिजाइन राइट तो 11th से आगे की मैं बात करूंगा तो तब तो किसी को इंटीरियर डिजाइन समझ में ही नहीं आता था काफी क्योंकि सारे लोग आप तो बोल भी नहीं। जैसे जैसे हम भी जानते हैं, जैसे आपका ये भी अभी जैसे अभी काफी ग्रो हो रहा है मार्केट, अभी भी इतना ग्रो नहीं यस हुआ है, आप कह सकते यस हैं, इंडिया में। यस यस तो क्या है अभी जब हमने स्टार्टिंग किया तब तो क्या है इतना सपोर्ट भी नहीं था मार्केट से हिसाब से लेकिन अभी क्या है कि अभी छोटी सी भी किसी को ऑफिस बनाना है या बड़ा सा बंगला बनाना हो तो भी अभी क्या है कि लोग एज ए इंटीरियर या तो एज ए आर्किटेक्ट को मिलते ही है ऐसे ही कोई नहीं बनवाते अभी सबको पता चला कि भाई अगर सिविल वर्क के साथ पूरा जीरो से काम करना है तो आपको आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ेगी एंड देन इंटीरियर की जरूरत पड़ेगी तो अभी क्या है सब लोगों को भी पता चलने लगा कि किसी को भी बंगलाज या कोई शॉप या वॉट एवर जो भी रिसोर्स वगैरह जो भी बनाना है तो उसके लिए ये चाहिए तो अभी काफी मार्केट ग्रो कर रहा है जो पहले स्टार्टिंग में मैं
जैसे 2011-12 की जो बात करूंगा, तो तब क्या है, इतना मार्केट ही नहीं था। कोई भी अगर कुछ करना है तो धीरे से, यानी कि मैंने जो मेरी स्टार्टिंग किया, जो भी स्टार्टअप किया था, तब बहुत ही लोअर बजट से भी किया था, एंड मेरी फीस भी बहुत लोअर थी। फिर भी मेरे को वो काम करना पड़ता था, बिकॉज किसी को समझ में नहीं था कि भाई इसका एक्चुअली किस हिसाब से क्या रहता है, या फिर किस हिसाब से करते हैं। तो अभी गुड, यानी कि वो टाइम के हिसाब से अभी जैसे गिनेंगे तो 60 to 70% गुड मार्केट। ओके। और जैसे आपने बताया और तो जब आपने स्टार्ट किया, जैसे आपने कहा कि आपको काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, यस। या तो और अभी के टाइम में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? मतलब किस तरीके से मार्केट चेंज हो रही है, कस्टमर का क्या क्या माइंडसेट होता है यस, आपके? अभी मैं आपको, यस, मैं बताना चाहूंगा कि भाई जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्टअप किया था, तब क्या है कि कस्टमर को कुछ समझ में नहीं आता था। कि हम्म। जैसे समझ लीजिए कि हम एज अ लेमिनेट्स या और विनियर का भी डिफरेंस अगर समझाना चाहे, तो वो भी उसको पता नहीं रहता था। मटेरियल की बात करें तो देन डिजाइनिंग में भी उसको कुछ समझ में नहीं आता। जैसे हम 3D वगैरह भी रिव्यूज देते हैं, या फिर 2D में भी एक्सप्लेन करते हैं, तो किसी को प्लान क्या होता है समझ में नहीं आता था। तो अभी क्या है कि भाई सभी कस्टमर को एज लेआउट प्लान भी समझ में आता है, और मटेरियल्स का भी जनरली नॉलेज रहता है कि भाई इसने यहाँ पे ऐसा डाला तो मेरे को भी ऐसा चाहिए। इतना तो समझ में रहता है, वरना पहले तो क्या था कि भाई कुछ भी हम अगर नया, जैसे लेमिनेट और सरमाइका, यू नो, लेमिनेट एंड सरमाइका दोनों एक ही है, लेकिन वो हम्म। भी लोगों को समझ में नहीं था कि भाई लेमिनेट यानी कि इंग्लिश वर्ड एंड सरमाइका इज अ हिंदी वर्ड, ऐसा। उसमें भी वो लोग डिफरेंट फील करते थे। तो वो सब क्या है कि मार्केट में अभी काफी इजीली हो गया है, और दूसरे नंबर में क्या है कि भाई हमें काम करना भी इजी हो गया है। सेकंड थिंकिंग, अभी जो लेबर्स वर्क वगैरह जो भी रह रहे हैं, वो सब भी एज आर्किटेक्ट और इंटीरियर का ड्राइंग्स वगैरह सब समझ के काम कर सकते हैं। वरना स्टार्टअप में क्या था, उन लोगों को ड्राइंग भी समझ में नहीं आता था, फीट इंच में भी फर्क हमें दिखाना पड़ता था, या में भी समझाना पड़ता था कि भाई इसको में इतना आता है, इसको बोलते हैं, इसको फीट बोलते हैं, इसको इंच बोलते हैं। तो अभी क्या है, डिफिकल्ट वो सब सब निकल गए। वो सब में हमें कुछ इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आता है। In short, clients know basic about the architecture and what is interior. They know plan, layout, elevation, everything. That या this is अच्छा। the main reason. ओके। लाइक जैसे आपने बताया और मनोज रखे, और उसमें मतलब आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन किस तरीके से होता है? क्योंकि जैसे आप, क्योंकि कैसे आप मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे होता है, जैसे इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, तो वहां पे आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं? हमें हमने क्या किया है, हमारी ऑफिस पे एक बड़ी लाइब्रेरी बना के रखी है ऑल मटेरियल्स की। और हम क्या है कि थोड़ा एक्सप्लेन भी करते रहते हैं कुछ नया मटेरियल्स, राइट। तो मटेरियल एक्सप्लेन करने के लिए लाइब्रेरी होना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि दो हम्म। मटेरियल्स मिक्स किया क्या किया। जैसे हम कोई भी डिजाइन पहले बना लेते हैं, कोई भी, यानी कि जो एग्जाम्पल, जैसे मेरा अभी एक रिसोर्ट का काम चल रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि हमने पहले सबसे पहले लेआउट प्लान्स बना लिया, लेआउट प्लान का भी यानी कि बहुत सारे थ्रोड्स वगैरह निकाल के क्लियर किया। बाद में वहां पे कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, उसका पूरा हम्म। हम रिसर्च करते हैं, क्यों इजी टू वे भी होना चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से क्या करते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं कि उसके वो मटेरियल वहां पे जो इजीली अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन में भी वो मटेरियल यूज चेंजेस करने का करते ट्राई करते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि भाई कस्टमर को भी कॉस्ट अकॉर्डिंग भी थोड़ा सही रहता है, और देन हमें जो मटेरियल चाहिए वो इजीली मिल जाता है, और हमारा प्रोजेक्ट भी थोड़ा फास्ट कवर हो जाता है। वरना कई बार क्या रहता है कि भाई मटेरियल्स अगर वो सिटी में नहीं है, दूसरे सिटी से लाना है, तो मटेरियल्स कॉस्ट भी बढ़ती है, देन टाइम जाता है, सब सब टाइप से, यानी कि कॉस्ट ज्यादा चढ़ती है। तो हम क्या करते हैं कि भाई बने वहां तक जो सिटी में जो मटेरियल अवेलेबल है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है। और जैसे आपने बताया, और सेकेंडरी थिंग, जैसे अभी आप देख रहे हैं जैसे एआई का काफी यूज हो रहा है, क्योंकि अगर आप उससे बोलेंगे कि आपको ड्राइंग चाहिए तो आपको ड्राइंग और प्लानिंग भी करके देता है, आई यस। गेस, यू नो। हाँ। तो आप उसको अपने बिजनेस में कैसे डेवलप कर रहे हैं? क्योंकि आप आने से 2 या 3 साल बाद आप बिजनेस को देखते हैं, तो बिजनेस का काफी चेंज होगा, क्योंकि उसमें एआई का काफी रोल हो रहा है, जैसे आपने चैट जीपीटी का यस। सुना होगा।
तो अगर आपको उसमें कुछ भी आर्टिकल ऐड ऑन कराना है, आपको ड्राइंग बनवानी है, कुछ भी आपको उसमें करवाना है, तो आप अगर उससे अगर आप उसे कमांड देते हो आपको करके देता है। तो आप उसको अपने बिजनेस में कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? या कैट फाइल्स होगी? हाँ, एआई का जैसे हम अभी क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इंटीरियर 2012-11 में इतना ज्यादा कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा था, राइट? तो हम्म। सेम पोजीशन अभी एआई वाला है कि व्हाट इज एआई। किसी को समझ में नहीं है कि भाई कौन सा क्या है एआई है नहीं है। कस्टमर को भी हम यानी कि एक्सप्लेन करते हैं कि इस हिसाब से भी काम होता है, यू नो। हम्म। तो एआई के लिए क्या है, अभी कस्टमर में यानी कि हमारे यहाँ पे हम जो कर रहे हैं इसमें वो लोग यानी कि इजीली नहीं मानते। जैसे 10 में से कोई एक को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया बस, तो उसके अंदर हम ये के लिए फुल यानी कि ट्राई कर रहे हैं। जैसे वो लोग प्लान्स वगैरह भी बना के देते हैं वगैरह, आपने जैसे बोला वो है, मेरी एक बार बात भी हुई थी। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो मैंने बताया ना, वो एक तो इश्यूज आ जाते हैं। देन अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है जो बिल्डर यानी कि सेल करने के लिए बेच रहा है, राइट? तो उसके हम्म। अंदर ये है कि रूल्स के हिसाब से जो भी काम करने जाए तो उसमें थोड़ा कॉस्ट का भी इफेक्ट आता है। तो उस हिसाब से भी वो लोग थोड़ा यानी कि पीछे हट जाते हिचकिचाते हैं, ठीक है। हैं। हम्म। तो इस हिसाब से क्या है, थोड़ा ये में ये लोग क्या है कि इतना ज्यादा नहीं वो कर पा रहे। लेकिन होगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। हम्म। यानी कि ठीक धीरे है। धीरे जैसे डेवलप होता जाएगा तो अपने आप वो क्लियर होगा ऐसे। ठीक है। जैसे और आज जाके बॉम्बे वगैरह में तो ज्यादातर प्रोजेक्ट। यस, कंटिन्यू। हाँ, और जैसे आपने बताया, और आपने ये भी मतलब जैसे काफी काफी जगह देखा होगा। सपोज आपका सपोज कोई भी आपका प्रोडक्ट है, आपका एक्सटीरियर है, तो मतलब स्कैनिंग का वो आता है जहाँ पे आप स्कैन करके देख सकते हैं कि जो आपका इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, आप उसको किस तरीके से मैनेज करना है। या आपका प्रोडक्ट है कि आपको सपोज ये प्रोडक्ट यहाँ पे रखेंगे तो अच्छा लगेगा, देखने में नहीं लगेगा, तो आप उसको भी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके। वो चीज करते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत क्लाइंट पर भी डिपेंड रहता है कि उन लोगों को थोड़ा फ्रीडम देना पड़े। अल्टीमेटली रहना तो क्लाइंट को ही है। तो वो जो चीज है अपनी, उसमें ऑप्शन देते हैं कौन सी चीज कहाँ पर रखनी है, क्या करना है। उसके बाद थोड़ा उन लोगों को सिलेक्शन करने का भी मौका देते हैं, तो उसको लगेगा कि नहीं, मैं भी थोड़ा इन्वॉल्व हूँ इसमें। सब और ठीक है। हाँ। बनने वहां तक तो है कि फिर हम मेरा डिजाइन के हिसाब से जो भी चीज जाती है वो यानी कि 80% तो मेरे पे ही रहता है, 20% क्लाइंट पे रहता है कि ये करना है या नहीं करना। बाकी 80% तक तो हम ट्राई करते हैं। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम्स या वास्तु वगैरह का कोई इश्यूज है, वो भी उसमें देखते हैं आर्टिफिक में भी। कोई कोई प्लान की भाई वास्तु के हिसाब से ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उस हिसाब से क्लियर करते हैं। वो भी आता है यानी कि हमें यानी कि फेस करना रहता है कि कोई ऐसा अल्टीमेटली कोई कलर ऐसा आ गया तो भी बोल देते हैं कि भाई नहीं, ये वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। तो उसको भी बाद में हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके क्लियर करना रहता है। नहीं, अच्छा है वैसे आपका, मतलब सपोज किसी का अगर डिसरिस्पेक्ट, और सबसे बड़ी बात है कि उनका भी अगर हम उनके अगर ओपिनियन को उसमें ऐड ऑन करते हैं, तो वो भी मतलब उनको भी एक रहता है कि नहीं, हमारा भी चीजों को सुना जा रहा है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा ठीक यस, रहता यस, है। यस। और जैसे आपने इसमें क्या बताया। करते हैं हम। जी। यस, कंटिन्यू। जी। और जैसे आपने बताया, और यहाँ पे आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं? जैसे आपने अभी सपोज एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, फिर वहां पे जाके आपको उसका फिनिशिंग देखना है, उसमें जो काम चल रहा है, और फिर सेकेंडरी आपको दूसरे आपको कस्टमर के साथ मीटिंग करना है, वहां पे आपको मटेरियल चेक करना है, तो आप किस तरीके से टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, और जो आपके रिसोर्सेस है? हम टाइमिंग में क्या करते हैं सर कि जैसे समझ लीजिए कोई भी एक नया प्रोजेक्ट आया है, तो उसका हम्म। एक मेरा फिक्स रहता है कि भाई 15 डेज या 1 मंथ डिजाइनिंग पीरियड, राइट? तो वो डिजाइनिंग पीरियड में हम मैक्सिमम क्लाइंट के साथ यानी कि बुकिंग्स और डिजाइनिंग्स वगैरह क्लियर अप करते हैं। देन एक टाइमलाइन बनाते हैं पूरा, रफली शेड्यूल बनाते हैं कि किन किन एजेंसियों की जरूरत पड़ेगी, कितना कितना टाइम लगेगा, ठीक है? उस हिसाब से एक पूरा वर्क चार्ट तैयार करते हैं। और देन कोई भी यानी कि अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो कोई भी एक एजेंसी को हम सबमिट कर देते हैं कि ये टाइम पीरियड में मेरे को इतना चाहिए।
और देन छोटा प्रोजेक्ट है जो यानी कि हमें करने लायक है, तो वो टाइम पीरियड हम मेरे हिसाब से लिख के ही दे देते हैं कि ये टाइम के हिसाब से ये चाहिए। देन दूसरा क्या है कि हम पूरा ग्रुप में काम करते हैं। एवरी डे मेरा साइट पे जो भी वर्क होता है उसका अपडेट यानी कि व्हाट्सएप पे आ जाता है। पूरा चैट वगैरह व्हाट्सएप पे आ जाता है। और देन हम उसका जो भी यानी कि प्लस माइनस रहता है, एक मेरा फिक्स है कि भाई शाम को 8 से 9 का टाइम जो रहता है वो सिर्फ व्हाट्सएप में निकालना है। जो भी यानी कि व्हाट्सएप पे कॉलिंग या आंसर वगैरह जो भी चैट का देना है सब एक साथ हम सबमिट कर देते हैं एवरीडे। तो क्या है, इसमें हमारा टाइम भी ज्यादातर बच जाता है। कॉल वगैरह का भी सब मगजमारी नहीं रहता। जिनको जो भी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाती है। अगर कोई इमरजेंसी वाला काम है तो डायरेक्ट हमें एजेंसी कांटेक्ट कर लेती है ऑफिस में। तो क्या है, उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट निकल आता है। ठीक है। तो मतलब आप मतलब जैसे आपने बताया आप मतलब ऑनलाइन चीजों को भी आप ज्यादा मतलब अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मतलब जैसे अभी सुना कि आप मतलब व्हाट्सएप पे भी आप सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप मतलब क्लाइंट्स को हैंडल कर लेते हैं, इनफैक्ट आप काम को भी हैंडल करते हैं, तो अच्छा लगा सुन के। यस यस। ओके। जैसे हो सकता अभी है कुछ डिटेल में फोटोग्राफ्स। यस, हो सकता है ये चीज कुछ डिटेल में फोटोग्राफ्स। और एजेंसी को भी थोड़ा क्या है कि भाई थोड़ा ट्रेन करना रहता है 1 या 2 बार, क्योंकि तेरे को इस हिसाब से मेरे को फोटोज भेजना है। ते तू जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स में आ रहा है वहां पे तेरे को एक ग्रुप में डालना है। जैसे कोई मिस्त्री काम कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिक का पॉइंट चाहिए। टेबल्स बना हम्म। रहा है तो टेबल्स के नीचे मैंने इलेक्ट्रिक का पॉइंट दिया है। अगर मिस्त्री ठोक देगा तो इलेक्ट्रिक का पॉइंट बाकी रह जाएगा। तो मिस्त्री क्या करता है, ऐसे टेबल्स का फोटो डाल देता है, मेरा टेबल रेडी हो गया इलेक्ट्रिक वाला, भाई तू टेबल में पॉइंट डाल। नहीं डालेगा तो मैं कल ठोक दूंगा, बाद में तेरी जिम्मेदारी। तो वो आके तुरंत डाल ही देगा। तो उस हिसाब से काम भी मेरा फास्ट होता है। ओके। और जैसे आपने बताया फिर जैसे और यहाँ पे आपको जैसे आपने कोविड में देखा था, तो कोविड में आपको क्या डिफिकल्टीज आपने, क्योंकि कोविड आपका अभी 2 या 3 साल आपका चला था, तो कोविड में आपने चीजों को किस तरीके Yes. से मैनेज किया था और कोविड के बाद आपको क्या इम्पैक्ट दिख रहा है मार्केट में? जैसे कोविड जब था ना, तो क्या है कि पहले तो स्टार्टिंग में तो सब 15-20 दिन या मंथ तो सबने टाइम पास किया बहुत बढ़िया। वो हम्म। तो सीधी बात है कि भाई सब कर दे। बाद में देन बिजनेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने क्या किया है कि भाई जो हमें मेरे पास टाइम मिला है तो उसके अंदर हमने हमारा कंपनी का पूरा डिटेल में एक वर्किंग जो चार्ट है ना वो एकदम स्ट्रांग बनाया। कोविड में हमने क्या किया, हमारा कंपनी का जो वर्किंग चार्ट है वो स्ट्रांग बने और इजी टू गो वर्क कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई कॉमन डिटेल्स आती है, जैसे कर्टेन्स लगाने के लिए बेलमेट की डिटेल्स आती है, वो सब हमने कॉमन कॉमन पार्ट सब अलग किया। एंड देन हमारी जो टीम्स है, हमारी ऑफिस की टीम्स है, उसके साथ भी हम कोविड में जूम पे चैट वगैरह करते थे। जूम पे थोड़ा बहुत काम भी वर्क देते थे, मीटिंग्स वगैरह भी देते थे। तो उससे क्या है कि भाई कोविड के बाद मेरा जब यानी कि मार्केट रेगुलर स्टार्ट स्टार्ट हुआ, तब सबको थोड़ा लोड पड़ा होगा, वो हमें नहीं पड़ा। हमें इजीली यानी कि स्मूथली सब चलता गया। आपने मतलब कोविड में मतलब जो आप जैसे आपका कोविड में जैसे आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपनी टीम को कैसे और इफेक्टिव वे में आप यूज कर सकते हैं, तो आपने यस। मतलब उस टाइम में आपने वो चीजें, ये काफी अच्छा है। ठीक है। और जैसे आपने बताया तो बिफोर कोविड जैसे आपने बताया 2019 और 2018, तो अब जब मार्केट ज्यादा ग्रो कर रहा है या अभी का मार्केट ज्यादा ग्रो कर रहा है, कैसे आपको मतलब अभी जैसे आप जो क्लाइंट्स मैनेज करते हैं वो किस तरीके से, मतलब मोस्टली क्लाइंट्स को आप कैसे चूज करते हैं? मतलब कस्टमर के जैसे आप सपोज आपके पास जैसे कोई। अभी का। जी। यस यस। कोई कस्टमर है तो जैसे अभी कस्टमर आप। को कैसे चूज है ऐसा। हाँ, कस्टमर को कैसे आपको चूज करते हैं आप? जैसे हमेरा क्या है कि हमें कस्टमर को चूज करना नहीं रहता है, कस्टमर हमें चूज करते हैं। और हमेरा क्या है कि माउथ पब्लिसिटी ज्यादा रहती है और वर्क पब्लिसिटी। जैसे हमें कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाया तो प्रोजेक्ट को देख के ही दूसरे 2 कस्टमर आना है। अगर हम्म। एक प्रोजेक्ट में हमें 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 कोई इश्यूज आ गए या फिर प्रोजेक्ट सही से नहीं बनाया, तो ऑब्वियसली ये क्या एक चेन टाइप का हमेरा मार्केट है। कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, उस टाइप हम्म। का हमेरा क्या है। चेन टाइप का मार्केट, बिकॉज हम सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। तो हमें क्या यस। सर्विसेज देनी रहती है, तो हमारी सर्विसेज से जो भी कस्टमर खुश रहता है वो दूसरे दो को बताता है। और जैसे कोविड से पहले, कोविड के बाद मार्केट काफी सारा अच्छा है।
जो कोविड के पहले जो था ना, वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। जो कोविड के बाद काफी ग्रोथ कर रहा है। एंड आपको भी पता ही होगा कि अभी कितना मार्केट चल रहा है, जो पहले नहीं। हेलो। आ रही है हेलो। आवाज? हाँ, आपकी वॉइस ब्रेक हाँ। हो रही है। हाँ। ओके। आ रही है अभी सही से? आ रही है? आ रही है सही से? हाँ, आप ठीक है, हेलो। ठीक। ओके ओके। ओके। सॉरी। ओ। नो नो, ठीक है। फिर जैसे आपने बताया, जैसे अभी आपका बिफोर आफ्टर कोविड, तो चीजों को किस तरीके से और सब जैसे आपने बताया कस्टमर के बारे में। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर मतलब बहुत जैसे आप इरिटेटिंग टाइप में होते हैं, मतलब आपसे काम होने क्या कहते हैं कि वो आपको जैसे उन्होंने बुलाया तो आप सपोज उनको कुछ काम करवाना है, तो वो आपसे आपसे ना करवा के काफी मतलब आप पहले तो डिसाइड करने में उनका टाइम जाता है। पहले वो आपसे भी देखेंगे, यस। दूसरों का भी देखेंगे, तो उस मतलब उस तरीके के कस्टमर को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि वो आपको हर फील्ड में मिलेंगे। नहीं नहीं, वो हमें काफी रहता है, लेकिन क्या है कि जैसे हमेरा तो क्या है कि अभी इतना इतने साल से हम काम कर रहे हैं, तो हमारी पास तो एक तो कस्टमर के भी रेफरेंस स्ट्रॉन्ग देते हैं। जैसे कोई भी कस्टमर का नाम देके वो कस्टमर आ रहा है, तो हम उसकी डिटेल एक बार वो कस्टमर से भी पूछते हैं कि भाई क्लाइंट कैसा है। एंड देन हम क्या करते हैं कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो भी रूल्स रहता है, जो भी उसका क्राइटेरिया है, वो भी हम उसको पूछ लेते हैं। एक ऐसे ही फ्री में मीटिंग कर लेते हैं कि भाई आओ एक बार हम मिल लेते हैं, ऐसा करके। देन अगर वो भी इंटरेस्टेड है मेरे काम से, और हम भी इंटरेस्टेड है उसके काम करवाने के तरीके से, तो देन हम बाद में फाइनल डील करते हैं। और एक आध लेआउट प्लान वगैरह जो भी देना है वो देते हैं, और वो देख के बाद में उसको भी ऐसा सेटिस्फेक्शन हो जाता है ओके, तो देन हम क्या है डायरेक्ट टोकन ले लेते हैं उससे, और बाद में हम कंटिन्यू काम करते हैं। तो क्या इससे क्या होता है कि भाई जो आपने बोला ना कि भाई अलग अलग आर्किटेक्चर कस्टमर्स रिव्यू लेता है, देन बाद में फाइनल करते हैं। मार्केट में है तो, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, और जैसे आपने बताया यस। अ, अ, हम्म, और आप बीएम फाइल्स को भी यूज करते हैं, BIM? नहीं, अभी हम उतना यूज नहीं करते। अभी धीमे धीमे रिक्वायरमेंट आएगी तो उसका यूज हम करेंगे। फिलहाल अभी नहीं करते उसका यूज। ठीक है। और जैसे आपने बताया अभी आप प्रोडक्ट डिजाइन भी करते हैं, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, कुछ लाइटिंग के प्रोडक्ट्स हो गए, आप उनको भी डिजाइन करते हैं? सॉरी सॉरी। आई सेड, क्या डिजाइन? आप मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिजाइन भी करते हैं, जैसे आपका फर्नीचर का प्रोडक्ट हो गया, कोई लाइटिंग के प्रोडक्ट्स हो गए, या आपका कर्टन्स हो गए, आप प्रोडक्ट डिजाइन भी करते हैं? यस यस, करते हैं। ठीक करते हैं है, हम प्रोडक्ट डिजाइन। दैट इंटरेस्टिंग। ओके। और जैसे आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो आप जो अभी मोस्टली प्रोजेक्ट मतलब जो करते हैं वो आपका गुजरात बेस्ड होते हैं, और कैसे आप सिलेक्शन कैसे करते हैं? क्योंकि आप अभी जैसे आपने बताया, क्योंकि गुजरात और मुंबई का भी काफी अगर आप आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग मिले तो काफी ग्रोइंग मार्केट है। तो आप वहां पे भी आपने मुंबई में भी आपने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, आप ओनली अभी गुजरात का मार्केट को हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं? यस। बॉम्बे और गुजरात दोनों मार्केट कवर कर रहे हैं हम फिलहाल। और जो बॉम्बे में भी हमारा जो प्रोजेक्ट्स वगैरह रहता है, उसमें मटेरियल्स वगैरह का सिलेक्शन जो भी रहता है, मैंने जैसे आगे भी बताया कि हम लोग एक मीटिंग व्हाट्सएप कॉलिंग या जूम पे भी रखते हैं पार्टी के साथ। एंड देन मेरी ऑफिस पे ही ऑलरेडी मटेरियल का एक मैंने पूरा स्टूडियो बना के रखा है। तो क्या है उसमें से मैं कंपनी कंपनी नेम एंड प्रोडक्ट्स वो सब मैं पार्टी को सिलेक्ट करवाता हूँ। एंड देन
पार्टी के यहाँ वो कंपनी वाले बंदे को ही भेज देता हूँ। जैसे बॉम्बे में एग्जांपल रॉयल टच लेमिनेट है, राइट? तो हम्म। उसका मैंने लेमिनेट यहाँ से सिलेक्ट किया डिजाइन के अकॉर्डिंग। देन उसी को मैं बॉम्बे में भी रॉयल टच वाले को थोड़ा बोल देता हूँ कि भाई दिस प्रोजेक्ट कैन यू गो एंड सिलेक्टेड पार्टी के साथ सिलेक्ट कर दे। तो वो क्या है कि पूरा कैटलॉग्स वगैरह लेके पार्टी को दिखा के पूरा सिलेक्ट करवा दे। अगर पार्टी को कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर से हम मीटिंग्स में प्लस माइनस भी कर सकते हैं। और देन अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट रहा है और ज्यादा सिलेक्शन रहा है तो हम जाते भी है, फिजिकली भी जाते हैं। फिजिकली भी जाते हैं। जैसे हमारा और जैसे आपने बताया मतलब जी। मोस्टली मतलब जैसे आपका साइट विजिट होता है तो आप मोस्टली केसेस में आप साइट विजिट करते हैं और उसको उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? मतलब अगर आप सपोज आप दिन में अगर 2 या 3 बार भी अगर साइट विजिट करते हैं कि आपके अगर 2 या 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसमें तो आपका पूरा मतलब दिन चले जाता है अगर ऐसे देखा जाए तो आप वहां यस, पे आप साइट विजिट कैसे करते हैं? और मतलब और मतलब कि साइट विजिट यानी कि जैसे समझ लीजिए मेरा ऑफिस है गुजरात, राइट? और हाँ। देन आप पूछना चाह रहे हैं कि भाई जैसे बॉम्बे में प्रोजेक्ट चल रहा है तो किस हिसाब से साइट विजिट करते हैं, राइट? जी तो जी। हम क्या करते हैं, वीकेंड चूज करते हैं। जनरली सैटरडे संडे या जो भी यानी कि वीकेंड, फर्स्ट मंडे, इसमें से कोई भी चूज करते हैं। और वन एक वीक पहले ही हम पार्टी को बता देते हैं कि भाई ये टाइम पे मैं आने वाला हूँ। और सब एजेंसी को भी पता चल जाता है। तो सब उसी हिसाब से तैयारी करके रखते हैं कि भाई सर को मेरे को इतना पूछना है, यहाँ यहाँ जाना है, वो सब करना है। तो क्या है, हमारा मैनेज हो जाता है। ठीक है। और जैसे आपने बताया और यहाँ पे अभी आपको मतलब आपको किस तरीके से आपको फ्यूचर लग रहा है जैसे अभी आपने कहा जैसे आप अभी ग्रो कर रहे हैं काफी अभी आपको मार्केट का रिस्पांस आ रहा है काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो आपने जैसे बताया तो अभी आप इसको कहाँ तक लेके जाना है मतलब कहाँ तक आपकी क्योंकि हर किसी का एक प्रिंसिपल होता है या हर किसी का एक माइंडसेट होता है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है एक लेवल है मेरा यस, या मतलब यस, कुछ एक माइंडसेट रहता है कि जैसे आपने जो काम स्टार्ट किया है तो आप उसको किस तरीके यस। से देख रहे हैं कहाँ तक आपको लेके जाना है मतलब आर्किटेक्चरल डिजाइन में आपके अपने एज जो अ जैसे आप डिजाइन में है ना, हमेरा हमेरा एक गोल है कि एक हमेरा ऑफिस बिल्डिंग हो पूरा, हम्म एक पूरा हमेरा ऑफिस बिल्डिंग हो। और गुजरात में तो हो ही। और हमेरा ऐसा भी गोल है कि भाई ऑल ओवर इंडिया, इंडिया में प्रोजेक्ट करना है। ऑल ओवर इंडिया में क्वालिटी वाले प्रोजेक्ट करने हैं, बिग प्रोजेक्ट। वो मेरा अभी गोल है। और देन सेकेंड गोल ऐसा है कि इंडिया के बाद में ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे को प्रोजेक्ट्स करने हैं। और वो भी क्या है, मेरे सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स और वो मेरे वर्क से ही पहचाने जाने चाहिए। जैसे मेरा जो वर्क करने का मेथड है, सबका अलग अलग मेथड रहता है। कोई भी प्रोजेक्ट देखेंगे आप तो क्या है कि भाई सबका अलग अलग मेथड रहता है। वैसे हमेरा भी एक अलग मेथड में हम काम कर रहे हैं। कि हमेरा ऐसा गोल है कि भाई ऑल ओवर इंडिया में तो अभी हुई, वो हमेरा यानी कि गोल जैसे समझ लीजिए कि 2025 या 26 तक हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई हो सके ऑल ओवर गुजरात एंड जैसे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, आजू बाजू का स्टेट, जो आजू बाजू के स्टेट है वो मेरे को 25 या 26 में फाइनली फिनिश करना है। कि वहाँ का जो भी प्रोजेक्ट्स आएगा वो मैं करूँगा। एंड तो फिर देन मेरा, जैसे आपने यस, बताया देन, तो जी जी तो फिर जैसे आपने बताया अभी आप जो करेंगे तो वो प्रोजेक्ट किस तरीके के होंगे वो सारे मतलब जो मतलब जैसे आपने बताया वो बड़े प्रोजेक्ट में आप चूज करेंगे या आप छोटे प्रोजेक्ट में भी अगर आप सपोज ऑल ओवर द इंडिया जाते हैं या ऑल ओवर ग्लोब जाते हैं अभी पहले ऑल इंडिया की बात करते हैं तो उसमें आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन किस तरीके से होगा सेम सेम लाइक गुजरात या उसमें भी आपके स्टैंडर्ड चेंज होते रहेंगे? नहीं उसमें भी मेरे स्टैंडर्ड चेंज होंगे। जैसे मैं बाहर का जो भी प्रोजेक्ट करूंगा गुजरात के अलावा, तो मेरा स्टैंडर्ड में क्या है कि भाई मेरे को बिग प्रोजेक्ट करना है। बिग प्रोजेक्ट करना है और वो भी किस हिसाब के प्रोजेक्ट, जो कि डिजाइनर प्रोजेक्ट, नॉट फॉर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट यानी कि क्या है कि भाई सिर्फ बनाना है और सेल करना है। उस टाइप के प्रोजेक्ट्स मेरे को नहीं करना है। जैसे बंगलोज हो गया, हॉस्पिटल्स, पर्सनल्स हो गई, होटल्स हो गई, रिसोर्ट्स हो गया, उस हिसाब के जो भी यानी कि प्रोजेक्ट्स है, जो पब्लिक प्लेसमेंट वाले जो प्रोजेक्ट्स है, वो सब मेरे को करना है। और वो सब मेरा बिग प्रोजेक्ट ही रहेंगे। वो मैं छोटा प्रोजेक्ट्स नहीं ले सकता, बिकॉज छोटा प्रोजेक्ट्स अगर लेने भी जाऊंगा तो वो मैं, मेरे को
अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इन अफोर्ड नहीं कर गुजरात पाए के बाहर। जी, अफोर्ड नहीं अफोर्ड कर यानी पाए। कि और फिर यस, आपको टाइम को भी फिर मैनेज करना है, क्योंकि अगर आप छोटे प्रोजेक्ट भी लेंगे फिर आपको क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और कहते हैं टाइम, आपको टाइम मैनेज करने में फिर टाइम डिफिकल्टीज। मैनेज में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मैं क्या है, गुजरात में ऑल ओवर गुजरात में छोटे बड़े सब प्रोजेक्ट्स लेता हूँ, लेकिन बाहर की वो जो भी आ रहे हैं वो मैं थोड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर रहा हूँ। तो ही क्या है कि मेरे को अगर मैं बड़े प्रोजेक्ट करूंगा तो ही बड़े प्रोजेक्ट साइड में जा पाऊंगा, वरना तो छोटे में घुसता जाऊंगा। क्योंकि वो तो सीधी बात है, जो प्रोजेक्ट करेंगे उसी का रेफरेंस मिलेगा। जी 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 जी। कहने का मतलब एक्सप्लोर करने को मिलेगा प्रोजेक्ट में, तो अच्छा रहेगा, कुछ नया करेंगे। अच्छा लगा। और जैसे आपने बताया, जैसे मेरी एक दूसरी मीटिंग है ना, हमारे टाइम का जो टाइम फ्रेम था वो भी टाइम फिनिश होने वाला है। तो जैसे आपने हाँ, बताया, तो मतलब सीरियसली मतलब आपसे जान के अच्छा लगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आप ऑनलाइन चीज़ों को, जैसे आपने बताया व्हाट्सएप पे आप चीज़ों को यूज़ करते हैं। और सेकेंडरी चीज़, अगर इसमें की पॉइंट देखा जाए, जैसे आपने बताया, फिर आप एआई को यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में। आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो गया, फिर आप कस्टमर को कैसे नेगोशिएट करना है, आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन किस तरीके से होता है। तो वो सारी चीज़ें जान के काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि इस तरीके से भी हम बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आपने बताया, थैंक यू। थैंक Just यू give, ऑल्सो। thank you. Just give me some second. ये ठीक। जैसे आपने बताया, तो आप दोनों से मिलके काफी अच्छा लगा, मनोज और अक्षय, है ना। फिर अगर मैं गुजरात आता हूँ तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा एक बार। अभी वहाँ पे चक्कर नहीं लगता हमारा, बट फाइनली जब भी आता हूँ मैं आपको मिलते हैं, है ना। और फिर आपको फिर, श्योर क्योंकि श्योर। हाँ, फिर अभी और भी जानना है कि किस तरीके से वहाँ पे किस तरीके से मार्केट ग्रो हो रहा है। तो वो सारी और चीजें जानना चाहूंगा, बट अभी समय की पाबंदी है। टाइम, यस थैंक यस। यू। थैंक यू, फिर आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। सी यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय।